गवाह इस बात का, अगर आप लोग डरेंगे नहीं, अगर आप लोग इस सरकार के सामने झुकेंगे नहीं, तो अच्छे के इस्तीफे ले सकते हैं हम। तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें। The events of July this year have drawn the nation's attention to a demographic that no political party is now in a position to ignore. A lot is often said about the youth quotient, about India's demographic dividend, a nation of the predominantly young or younger, and the potential it has to grow and make a mark. But Gen Z, comprising those who were born between 1997 and 2012, is already making a mark. And that was evident in Jantar Mantar in the national capital, as well as other parts of the country, where students took to the streets to protest against the NEET paper leak and demanded the resignation of the then Education Minister Dharmendra Pradhan. It was a demand that was eventually met. हमारी भी सहानुभूति है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं, और सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ हम सब लोगों ने कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम, कि हम एजुकेशन के एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलिब्रेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे। याद रखना, कॉकरोच से पंगा नहीं लेना है। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। We have bloody Senate। क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। The protests acquired momentum with the commencement of the monsoon session of Parliament on the 20th of July. Sonam Wangchuk, the activist from Ladakh, had undertaken a fast. The Cockroach Janata Party, founded by Abhijit Deepke among others, rallied behind him, and soon it became difficult for the opposition parties, keen to latch on to the traction that this movement had already acquired, to refrain from showing solidarity. The Congress, the left, the AAP all joined in. ये इन्होंने अभी भी एफआईआर दर्ज किए हैं स्टूडेंट्स के खिलाफ, शायद कल रात को या आज सुबह। बैलेट गन्स, AK-47 are these terrorists? What is wrong with these? अभी तो फिलहाल जो छात्र नौजवानों के साथ कई जगह पर सरकार केस करा रही है, मुकदमे लिखा रही है। सरकार को चेतना को चुनौती नहीं देनी चाहिए। I don't think the government is in a position to tell us anything right now. What is most important now is accountability from the Home Ministry. देखिए, दिल्ली में पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, बिहार में AK-47 का इस्तेमाल किया गया, तो सदन में जब बोलने का मौका मिलेगा तो इस मुद्दे को हम लोग उठाएंगे। The central government was compelled to engage with the protesters as well. JP Nadda and Jitendra Singh were deployed to speak to the CJP representatives and hear their demands. Both would eventually meet Sonam Wangchuk, requesting him to end his fast. So, with that being fulfilled, I am grateful and I will be happy to break my fast. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I have my leaders from the apex body of Ladakh and the KBA were also here, and they have flown all the way from Ladakh. And just sit up a little. And Nitanji, you have always been by my side and support, and I don't want to thank you, but express my feelings this way. Just sit up. I think Prime Minister Narendra Modi put out a series of social media messages appearing on Instagram to convey his views to Gen Z and assuage their concerns. फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए
भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। And eventually, the government yielded as well, with Dharmendra Pradhan resigning. देखिए, जिस समय से छात्र नौजवान अक्रॉस द पार्टी लाइन जिस तरीके से छात्र नौजवान निकल करके आए और उन्होंने इस बात को समझा कि शिक्षा मंत्री जिनके हाथ में सब कुछ था, जिनकी वजह से नीट की परीक्षा में पेपर लीक हुआ, और देश में ये पहली बार नहीं हो रहा था परीक्षा लीक, परीक्षाओं के पेपर लीक पहली बार नहीं हो रहे थे, ये लगातार इनके इसी तरह चल रहे हैं। अगर पूरे देश का हम लोग माने तो 150 के लगभग पेपर लीक हुए हैं। और आपको याद होगा यूपी में जब हम लोग बैठे थे तो जो यूपी में 20 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, परीक्षाएं रद्द हुई और शिक्षा परीक्षा दोनों व्यवस्थाएं ध्वस्त हुई, उसको लेकर के हम लोगों ने समय समय पर चर्चा की। जब छात्र नौजवान दिल्ली में बैठ गए और सोशल मीडिया या बड़े बड़े शहरों में जिस तरह छात्र नौजवान युवा अक्रॉस द पार्टी लाइन बाहर निकल करके आए, ये आंदोलन छात्र युवा नौजवानों का था, पढ़ने वालों का था, जिन्हें लग रहा था कि पिछले कई वर्षों की सरकार में उनकी सुनवाई नहीं हुई, उन्हें जो सम्मान मिल जाना चाहिए था नौकरी रोजगार से, वो नहीं मिला। वो सब सड़कों पर थे और सड़कों पे जो इंकलाब के नारे, हल्ला बोल के नारे जो लगे, उसका परिणाम ये हुआ कि सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। आज का जो तब्दीली पैदा हुई है वो इस बात की तरफ इशारा देता है कि मोदी सरकार अगर ये समझ रही है कि वो जो चाहे कर सकती है, चाहे बुलडोजर से घर तोड़ सकती है या फिर किसी को दबा सकती है, तो इस आंदोलन ने इस बात का उनको खुला पैगाम दे दिया है कि अब तानाशाही नहीं चलेगी। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। हमारे देश में लोगों का जनतंत्र से भरोसा ही उठ गया था। लोगों को लगने लगा था कि सरकारें सुनती नहीं है, जनता सरकारों के सामने चिल्लाती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी। हर चीज के लिए हम सरकार को हाथ जोड़ते रहते थे, पैर पकड़ते, सरकारें कभी सुनती नहीं थी। इतना बड़ा संघर्ष हुआ और अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा। ये बहुत बड़ी जीत है, पूरे जनतंत्र की जीत है, डेमोक्रेसी की जीत है। और सरकार को भी अब समझ लेना चाहिए कि आपको जनता की सुननी पड़ेगी। ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार नीट के सिस्टम को ठीक करेगी ताकि अगली साल अब से पेपर लीक होना बंद हो जाए इस देश के अंदर। It is expected that Gen Z could account for almost 380 million Indian voters in the 2029 Lok Sabha elections. The Prime Minister would describe Gen Z as Amrit Peedi. मेरे युवा साथियों, आप भारत की अमृत पीढ़ी हैं। आप अगले 20-25 वर्षों में अपने जीवन को भी दिशा देंगे और आप ही 2047 में देश को विकसित भारत की मंजिल तक लेकर जाएंगे और उसके शिखर पर आप ही बैठे होंगे। उसका सारा रसपान करने का अवसर आप ही को मिलने वाला है। देश को आपकी ऊर्जा, आपकी कल्पना शक्ति और आपकी टैलेंट की जरूरत है। इसलिए देश के लिए
और अपने जीवन के लिए खुद को नशा मुक्त रखना बहुत जरूरी है। Rahul Gandhi, the leader of the opposition in the Lok Sabha, would also engage with Gen Z. When the monsoon session of Parliament began, there were impassioned debates on the reforms needed in the education sector and also the police action that took place during the violence that was witnessed during the protests. The debate took place while bringing in stricter punishments for paper leaks. देखिए, आज होम मंत्रालय पे चर्चा नहीं हो रही। आज जिस विधेयक पर चर्चा माननीय मंत्री जी बैठे हैं, The Home Minister, sir, the Home Minister. नो, आज होम मिनिस्टर पर चर्चा नहीं है। जिस विधेयक पर चर्चा है, विधेयक पे मंत्री बैठे हैं। यही व्यवस्था रहती है सदन के अंदर। Sir, the Home Minister. Sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. क्या बोल रहे हैं? सर, ये आप सोचिए, आप कितना गलत बात बोल रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, आप बिना सोच समझ करके जो इस्तेमाल कर रहे हैं और किसने फायरिंग का ऑर्डर दिया, What is going on? कैसे बोल सकते हैं आप? कितना गलत बात करते हैं, ऐसा मत बोलिए। राहुल गांधी जी, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, गंभीरता से बात बोलना चाहिए। आप बिना तर्क करके यहाँ ऐसा बात करते हैं, ये ठीक नहीं है सर। अभी तुरंत आप किस बेसिस पे ये बयान दिया है? किस बेसिस पे आपने ये बयान दिया, बताइए। किसने आपको बताया और किस तर्क के साथ आप ये बयान दिया है? ये बहुत गलत बात बोला है राहुल गांधी जी, बहुत गलत बात बोला। मैं इसका आपत्ति करता हूँ, कार्रवाई से निकालना ही चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जी, आप माफी मांगिए, ये ठीक बात नहीं है। आप ऐसे नहीं बोल सकते, गलत बात बोला है। कैसे आप गृहमंत्री जी को इतना बड़ा आरोप कैसे लगा सकते हैं? ठीक नहीं है, बहुत गलत बात बोला है। अब गोली चलाना ये कोई छोटा मोटा चीज नहीं है। ये तो देखिए कितना गलत बात बोला अध्यक्ष, ऐसा तो नहीं बोल सकते। How can he say that somebody ordered firing? You can make statement outside in the house. You cannot make that statement. It is a serious allegation. It is a breach of his own position and privilege. This is not proper. ऐसा नहीं हो सकते हैं, आप कैसे बोल सकते हैं? हम घर से कफन बांध करके निकले हैं और हम रिफॉर्म करके लाएंगे जो दिल्ली के जंतर मंतर में हुआ। मेरा रांची दिल्ली का जंतर मंतर बनेगा और ये हम करके दिखाएंगे। हम लोगों की मुख्य मांगे है जेएसएससी सीजीएल को पूरी तरह से रद्द कराना। शर्म नहीं तो चूप करो, हेमंत सरकार शर्म करो। छात्र बोला है। But that isn't all. There were protests taking place in Ranchi in Jharkhand as well against irregularities pertaining to recruitments in the Jharkhand Public Service Commission. This was a protest also against the Hemant Soren-led government in Jharkhand. मेरा कहना है कि ये जांच से पर्याप्त चीज हो गया है कि पीटी परीक्षा को रद्द करना चाहिए। तो वर्तमान समय में झारखंड सरकार का जो रवैया है और आयोग का जो रवैया है, इससे झारखंड के तमाम छात्र का मेरे पास फोन आ रहा है। इस प्रकार से मनोबल टूट रहा है कि कुछ लोगों को गिरफ्तार करेंगे, कुछ जांच पड़ताल होगी और अचानक किसी दिन मुख्य परीक्षा का तिथि घोषणा कर दिया जाएगा। तो हम छात्र का मनोबल को बनाए रखने के लिए इस लड़ाई को आगे और बढ़ाते हुए सत्याग्रह के 9वें दिन आज हम अपना अन्न को त्याग कर रहे हैं और भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। सबसे पहले 14वीं पीटी परीक्षा को रद्द कराएंगे। सरकार के दरवाजे सभी के लिए खुले और मुझे लगता है सभी लोगों को या जिनकी मांगे सरकार से है वो अपनी बातें रख सकते हैं।
सबके एजेंसीज है, एजेंसी देश में कौन कौन सा है आप सबको पता है, और कौन कौन किस तरीके से काम कर रहा है वो भी पता है, और कैसे आंदोलन के मोर्चे संभाले जा रहे हैं वो भी आपको पता है। जहां ऐसी घटनाएं तो हो रही हैं लेकिन सरकार कोई कदम नहीं। The Cockroach Janata Party, including Deep K, eventually showed solidarity with these protests as well, and so did Sonam Wangchuk. तो उनको जानकारी होने के बाद उनको चिंता हुआ और हमारे टीम से संपर्क करके बात किए और उन्होंने आग्रह किया है कि जल ग्रहण करते हुए आप अन्न का त्याग करके भूख हड़ताल को कंटिन्यू करिए। जब जंतर मंतर में हम भूख हड़ताल में थे तब हम जल और नमक का ग्रहण करते थे, तो हमने टालने का प्रयास किया। चूँकि यहाँ 26 साल से स्टूडेंट परेशान है, तो सोनम सर को डाउट हुआ कि बाद में ये लड़का पता नहीं जल ग्रहण करे या नहीं, इसलिए वो बोले कि मेरा कैमरा के सामने आपको जल लेना होगा। तब उनको हम एक शर्त रखे कि अगर आप मेरा शर्त मानेंगे तभी हम जल ग्रहण करेंगे। झारखंड के जो साथी हमारे वो ऑलरेडी वहाँ पर है और ज़रूरत पड़ी तो हम लोग भी जाने के लिए तैयार, और हम जाएंगे ज़रूर। और हमारी उनसे फ़ोन पर बात भी हुई, वीडियो कॉल पर बात हुई, और हमने कहा है कि आपके आंदोलन को मजबूत करने के लिए जो हो सकता है वो कॉकरोच जनता पार्टी करेगी, और उनकी जितनी भी डिमांड्स हैं हम उनका पूरा समर्थन करते हैं। The BJP said that the India bloc, principally the Congress party, was being hypocritical. It had no hesitation backing the protests in Jantar Mantar, but not a word was being said by them in solidarity with the protesters in Ranchi. But this changed over time. देखिए, जिस प्रकार से भी सुना है कि कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी ने झारखंड के रांची में जो छात्रों के द्वारा विगत 13 दिनों से जो आमरण अनशन किया जा रहा है उनको मोबाइल के माध्यम से समझाने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि शर्म को भी शर्म आनी चाहिए। तो इन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी को शर्म नहीं है। पहले उन्हें माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात करनी चाहिए कि जो विगत 13 दिनों से हमारे बच्चे, हमारे छात्र जो जयपाल सिंह स्टेडियम में भरी बरसात में वहां पानी में भीग भीग कर बिना खाए पिए जो परीक्षा में जो पेपर लिखे हुए हैं उसकी धांधली को लेकर के वहां पर अनशन पर बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे आमरण अनशन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि सीबीआई जांच करा करके इस केस का उद्भेदन किया जाए, जो दोषी है उसको जेल भेजा जाए। तो राहुल गांधी जी छात्रों से बात करते हैं, आप समर्थन कांग्रेस पार्टी आप देते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के आपके समर्थन से वहां पर सरकार चल रही है। आपको माननीय मुख्यमंत्री जी पर दबाव डालना चाहिए कि छात्रों का डिमांड सीबीआई जांच है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी सीबीआई जांच की आप अनुशंसा करने का काम करें। Not in a position to ignore Gen Z once again, Rahul Gandhi, in an Ask Me Anything session on the social media, said that the Jharkhand government will have to respond to the protesters in Ranchi.